دوستوں حالہ جو ہے اس کے ٹائلز جو ہیں یہ پورے ملک میں مشہور ہیں اور بہت قدیمی کام ہے یہ. اس میں کاشی کا خوبصورت کام بھی جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے. اس وقت ہم اسلم صاحب اور امتیاز صاحب ہمارے دوست ہیں. اسلم صاحب کے پاس آئے ہیں. ان کا یہ کارخانہ ہے جہاں پہ کاشی کے برتن، مینارے اور مختلف چیزیں یہ کاشی کے بنتی ہیں، جو کہ ہمیں آگاہ کریں گے کہ یہ اس میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ مٹی ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مٹی جو ہے، جتنی مٹی اگر صحیح نہیں ہوگی تو کام بھی صحیح نہیں ہو سکے گا. اسلم صاحب یہ مٹی خاص مٹی ہے کوئی؟ خاص مٹی ہے جکی اساں گھرائندا آहियूं. جی مخدوم صاحبن جی بنی ہے. جی اجازت وٹھندا آहियूं، ان کان پوइ یہ مٹی اساں ملندی ہے. اچھا، یہ خاص مٹی ہے جو مخدوم صاحبان کی زمین سے آتی ہے. ان کو اجازت لینی پڑتی ہے. اس کے بعد یہ تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ یہ مٹی یہاں پہ گوندتے ہیں جیسے آٹا گوندا جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ گوندتے ہیں. تو ابھی آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں. اچھا میں پانی بھرے کلٹی دے تھوڑی ریکارڈنگ کرنی سائیں پسण کا پوइ یہ مرحلو ہے جو مکس تو کرے. یہ مٹی کو جو ہے بنا رہے ہیں، محنت طلب کام ہے اور سارا دار و مدار جو ہے اس مٹی کے گوندنے پہ، اس مٹی کے بنانے پہ ہے. اگر اس مٹی میں کوئی کسر رہ گئی تو پھر جو ہے کوئی نہ کوئی اس کاشی کے برتن میں کوئی نہ کوئی نقص رہ جائے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں جناب؟ اچھا، یہ کتنے فٹ گہرا گڑھا ہے؟ یہ کتنے فٹ گہرا؟ 2 فٹ گہرا گڑھا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم آپ کو مرحلہ وار بتا رہے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ یہ مٹی تیار ہوگی اور اس کے بعد اب یہ مٹی آ رہی ہے ایک فریم میں، جو کہ جس کی یہ جو فریم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائل کا فریم ہے. اس سے ٹائل بنے گی، کاشی کی ٹائل جو آپ نے دیکھی ہوگی. یہ اس کی سائز میرے خیال میں 2x2 لگ رہی ہے. 1.5 فٹ ہے. یہ 1.5x1.5 ہے اور یہ بڑی ٹائل ہے میرے خیال میں. یا اس کو آپ اس میں سے 4 ٹائلیں بنیں گی. یہ 1.5x1.5 کی ہے اور اس میں سے 4 ٹائلیں بنیں گی. اور سارا کمال جو ہے مٹی گوندنے کا ہے. یہ اسپیشل مٹی ہے جو خاص کر کے مخدوم صاحب کی زمینوں سے آتی ہے، ان کی اجازت سے. اچھا، اگر کسی اور جگہ سے یہ مٹی لائی جائے تو وہ کارگر نہیں ثابت ہوگی، کام کی نہیں ہوگی، وہ کام کی نہیں ہوگی. اس میں آلودگی ہوگی. اچھا، آلودگی ہوگی اس میں. بغیر آلودگی جیکي مٹی یا مٹی ہے ان میں نمک ہوندا نا تو وہ کم ہی نہ تھي. اچھا عمر کاشي نہ تھي. ہاں نہ دریا زمین ہے کہ سائن سول اسپتال پويان یہ اس میں سے 4 ٹائل بنیں گی. یہ نشان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ 4 ٹائلیں بنیں گی کاشی کی. ہم بنی ہوئی ٹائل بھی آپ کو دکھائیں گے. اس وقت یہ جو ہے اس حالت میں ہے بنی ہوئی ٹائل. اچھا، اب آئیے آپ کو ہم لے چلتے ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے کام ہو رہے ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سلیم. سلیم. کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہ آپ؟ بچپن سے کر رہا ہوں، تقریباً 20-25 سال ہو گئے. 25 سال ہو گئے آپ کو. ماشاءاللہ، آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ. اب اس وقت یہ کیا آپ بنا رہے ہیں؟ یہ لیمپ بناؤں. لیمپ بنا رہے ہیں آپ؟ زبردست. یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلیم نے بنایا ہے یہ کام خوبصورت سا. اور یہ اس میں آپ کو مختلف چیزیں، یہ اسٹینڈ ہے آج کل جو ہے اس کے اوپر یہ جانوروں کے لیے، چڑیوں کے لیے جو ہے وہ پانی یا کوئی دانہ رکھتے ہیں. آج کل یہ رجحان بہت چل رہا ہے. یہ پیالہ بنا ہوا ہے خوبصورت، اور وہ مجھے گلدستہ نظر آ رہا ہے.
ये दिया है, ये मिट्टी का दिया है। हाँ, ये चराग है। चराग, चराग, अलादीन का चराग यार, वो तो लंबा होता है, पर ये तो दिए हैं जो जलाते हैं। चराग बोलते हैं, हाँ, और हिंदी में इसको दियो बोलते दियो, दियो सिंधी में दियो, और हैं। चराग। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं कि उर्दू में इसको चराग कहते हैं। हाँ, ये आमतौर पे जो है, ये देखें पूरा सेट देखें आप, असलम साहब के पास पूरा सेट है, ये खूबसूरत सेट है। अब जब इसके ऊपर नक्शो निगार होंगे तो फिर ये खूबसूरत जो है वो भी दिखाएंगे हम आपको। ये सब दिवाली के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे यहाँ हाला में अक्सर जो हिंदू पंचायत होती है उनकी को सेलिब्रेशन होती है जी हाँ, दिवाली खास तौर पे। जी, तो ये दिवाली में ये चारों पांचों ये दिए जलाते हैं और वो अपनी मनमाना पूरी करते हैं। इस दफ़ा ईद मिलादुन नबी पे भी बहुत ज़्यादा एहतमाम किया था, बहुत से हज़ारों की तादाद में दिए लोगों ने जलाए थे और अपनी एक अकीदत का इजहार देखा कि वहाँ पे जो है ये पीस जो है साफ निकल के यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे पहुँचने के बाद ये पॉलिश होगी, इसके ऊपर पॉलिश होने के बाद जो है ये देखें ये इस शेप में आ जाएगा, इसको अस्तर लगेगा। और ये अस्तर ये किस चीज़ का लगता है आसम साहब? ये पत्थर है, जी हाँ, चकमकी पत्थर है। चकमक, हाँ, रोडी से मंगाते हैं। रोहड़ी से ये आता है, इसमें ये अस्तर लगा है। और इसके बैक साइड पे अस्तर लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा, ऊपर नहीं ये लगेगा। दीवार में लगेगी नहीं। ठीक है, ये दीवार में लगेगी, अब सही। इसके बाद ये इसको छपाई हुई है। इसके ऊपर ये छपाई हुई है। इस अस्तर करने के बाद इसके ऊपर ये आप देख रहे होंगे, नजदीक से देखें, ये डॉट्स डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये छपाई का काम हुआ है। तो अब असलम साहब क्या बताना चाह रहे हैं आप हमें? अब ये छपाई अच्छा, आप ये असलम साहब हमें छपाई करके बताएंगे कि किस तरह से जो है ये इन्होंने एक पेपर जिसके ऊपर ये देखें ये छपाई का काम हो रहा है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। असलम साहब ने हमें छपाई करके दिखाई है। ये छपाई हो रही है नाज़रीन, ये देखें कि ये जो टाइल हम, हाँ, ये हालांकि जो मशहूर टाइल है उसके बहुत से जो है मराहिल हैं, ये एकदम से तैयार होके दुकानों पे नहीं आ जाती। ये आप देखें ये कितने इसके मराहिल हैं। इसके बाद जो है ये देखें यहाँ पे एक आर्टिस्ट हैं जो कि इसके ऊपर अपना नक्शो निगार, खूबसूरत नक्शो निगार जो है ये कर रहे हैं। नक्शो निगार करने के बाद ये इस हालत में, इस शेप में आपको ये असलम साहब जो रख रहे हैं, देखें, सुभान अल्लाह, ये कितनी खूबसूरती है इन टाइलों में। ये मजबूत पाईदार हैं। हाँ जी, ये माशाल्लाह से, माशाल्लाह से 120 साल इसकी उम्र है। 120 साल तक जो है वो, सुभान अल्लाह, इंसान की भी इतनी उम्र नहीं है माशाल्लाह से। में ये हाँ, चेक होगी। ये भाई भी वही नक्शो निगार का काम कर रहे हैं। सही, ये मस्जिद के मीनार को, हाँ ये तख्ती है कब्रिस्तान की। हाँ, ये तख्ती है कब्रिस्तान की, माशाल्लाह। ये मुझे टाइल बहुत अच्छा लगा। अगर एक दफ़ा फिर आप इसे ले लें, फुल टाइल को ले लें, ये देखें ये टाइल कितना खूबसूरत टाइल है। हालांकि टाइल तो वैसे भी बहुत मशहूर है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। ये नक्शो निगार इस पे आप बने हुए देख रहे हैं। जब ये नक्शो निगार इसके पर बन जाएंगे तो इसके ऊपर केमिकल लगेगा। ये इस केमिकल को क्या कहते हैं? हम सिंदूर बोलते हैं। ये केमिकल इसके ऊपर लगेगा। फिर ये देख रहे हैं आप मेरे तरफ ये भट्टी बनी हुई है, बहुत बड़ी भट्टी आपको नजर आ रही होगी। उसमें ये जो है 2 दिन के लिए इसको यहाँ से हम रखेंगे। दो दिन के लिए ये हजारों की तादाद में टाइल्स बन के इसमें अंदर चले जाएंगे। फिर इस भट्टी को जो है फुल अपने अलाव के साथ ये जलती रहेगी 2 दिन तक। कोयले बन जाएंगे, लकड़ी जो है वो जलती रहेगी 2 दिन तक। फिर जब ये निकलेगा
तो इसकी जो है ये सूरत निकल आएगी। ये देखें, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये कितना खूबसूरत टाइल जो है ये भट्टी से निकला है। और ये असलम साहब ने मुझे बताया कि इसकी उम्र 120 साल है। इसकी ये इतना खूबसूरत है, ये देखने में इतना खूबसूरत है। ये आजकल तो लोग घरों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हो रहा है बहुत कम कम यानी कि जो इसको सकाफत को समझते हैं। और सिंध को जिंदा रखने के लिए ये कहते हैं ना हाँ कि ये हमारी तहजीब है। तो उन घरों में आज भी है, आज भी हमारे हाला में एक बिल्डिंग बनी हुई है जी। जिसके अंदर ये इंस्टॉल है। अच्छा असलम साहब, ये लोग जो है बैरून मुल्क से जो है इटली से, जर्मनी से और ईरान से, कहाँ से टाइलें मंगाते हैं महंगी महंगी, जिसमें हमारा कीमती ज़र मुबादला भी जो है, तो क्या ये उससे सस्ती पड़ेगी या ये उससे महंगी पड़ेगी? ये जो बाहर से टाइलें आती हैं, बाहर से जो आती है ना, हाँ, उनसे सस्ती है, उनसे सस्ती है। और भाई ये जो ये कराची में टाइल, छबी टाइल है, वो हाँ, हमारे नाम पे बेचते हैं, हाला टाइल करके। जी 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 वो जी, हमने हुनर दिया उनको। अच्छा अभी अच्छा हाला टाइल करके वो बेचते हैं। अच्छा। ये थोड़ी मोटी थिक नहीं है, ये थोड़ी टाइल थोड़ी वो पतली जो है ना, जो प्रेस की है। अच्छा, ये हमारा जो है जी, इसमें दीवार में लगेगी, दीवार में तो ये लगी, पायदार हो जाएगी। पायदार है, जो टाइल है जी, वो दीवार में लगेगी, 2 साल के बाद निकल जाएगी। ये नहीं निकलेगी, अगर निकालनी होगी नहीं आपको तो तोड़ के निकालेगी। अच्छा, ये फर्श में भी इस्तेमाल कर सकते? नहीं, फर्श में इस्तेमाल नहीं होगी, ये बड़ी बड़ी बंगले में होती है, हाँ, मस्जिद में होती है, दरगाहों में होती है। हाँ, ये मस्जिदों में अक्सर जो है, मस्जिदों में मैंने देखा है ये टाइल बकसरत इस्तेमाल होती है। मस्जिद है ये सादकाबाद में, ममता चांग है, अच्छा MNA, अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी मस्जिद है, एकड़ में 2 एकड़ में बनी हुई है। खूबसूरत, टोटल उसने ये हाला की टाइल लगाई। सुभान अल्लाह, मैंने उनको माशाल्लाह, बोला था तुम वोट लाइट की नहीं, ये मेरे को हाथ का काम चाहिए। सुभान ये अल्लाह, खूबसूरत है माशाल्लाह। उसने सारी मस्जिद में ये काम कर रहा है। अच्छा, इधर वो शम्स तबरेल की दरगाह है, शम्स तबरेज़ मुल्तान में है, वो मैं काम करता हूँ अभी उनका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम मराहिल से हमें आगाह किया। हम लोग हाला की टाइल के बारे में सुनते आए थे बरसों से, आज अपनी आंखों से देखी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी इंजा साहब, थैंक यू वेरी मच सर, मेहरबानी।